So can you see the screen, the presentation? Is it No, visible? sir. No. Okay, it's going to be visible. Yeah, it's visible now. Okay, yes, thank you, thank you. So this is the first line for the today's session. Please try to understand. Story is crucial to our construction of meaning and is carried by our dream of the impossible. Without story, we are without soul. Why it's why this caption is over here? So just take the screenshot and if possible, try to explain it after complete the session. Okay. So our today's section is about archives, archaeology, culture, and museum. So this course is regarding heritage. Okay. So explore the archives and the heritage. Okay. So here we'll start from the archives. As Terry Cook and John Squirts, actually, our concept of the archives, the use of the archives, or to maintain the archives is something different. And here we'll see something different. They point out that the archivist plays a carefully scripted role in this research drama, in a performance through which the researcher and the reference archivist interact. The archivist is an actor, not a guardian, a performer, not a custodian. So please try to understand this line because nowadays here our librarians and the archivist role is as a guardian, is as a custodian. लाइब्रेरियन को आर्काइव्स को म्यूजियम जो क्यूरेटर होते हैं उनको ऐसा लगता है हम हेरिटेज को जो है सिर्फ प्रोटेक्ट करना है जो भी आर्काइव्स है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है जो म्यूजियम मटेरियल है हमको ऐसा लगता है सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बट our role is something special so we need to try so it's an actor performer it is the theoretical role that endows the artist with authority and power so inside of the power archives think of themselves as neutral and passive like in power negative stereotypes of archives in fiction films and news media convey an image of knowledgeable and ineffective tolerance in dark mysteries basement and in an information-based society. Today's society which is called as the information-based society, knowledge provides means to power. So knowledge does not equal power as the issue would have, but power cannot be exercised without it. So ताकत क्या है? What is the power? आज ताकत में अगर किसी को कुछ करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं को हो सकता हूँ आप म्यूट कर सकते हो. So आज की तारीख में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो पावर बन चुका है. और without the knowledge, without information, computer cards or any others, you can't do anything. So it's not like something important. Archives have long. Excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Your voice is breaking, sir. It is not properly audible, please. Oh yes, very sorry. Because yes, there was a internet issue. Just a minute. Just a minute. Sorry. Again, I will start it. Sorry for it. Again, there is some internet issue. I will left from session and will join again. Just a minute.
मैं अभी मेरे मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि ये सेम इशू हमारा 2 दिन पहले भी हुआ था, और ऐसा इशू ये फिर आज हुआ है, सॉरी फॉर बिफोर 7 days, last week it was the same problem. Sorry for this internet issue. Some internet problem is this side. So, well, अगर बीच में ही फिर अगर रुक जाए, कुछ बंद हो जाए, तो कृपया मुझे मैसेज कीजिएगा या फोन कीजिएगा. क्या आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, sir. Now is it okay? Yes, thank you. Yes, okay, thank you. So archivists have long recognized that they are somehow in the memory business. So, but they have not always understood their role or the extent of their job description. अभी तक तो हम लोग सिर्फ इतना ही समझते आए कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारा जो सब समाज जो है, द नेशन और द सोसाइटी, सो इससे संबंधित जो भी हमारे पास जो मटेरियल है, हम सिर्फ उसकी रखवाली करते हैं, या जिसको चाहिए उसको समय पर सिर्फ वो प्रोवाइड करना, इतना ही हमारा ड्यूटी है. बट हमारा उसमें और भी महत्वपूर्ण और अहम रोल हो सकता है, द इम्पोर्टेंट रोल, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कभी केयर नहीं किया. बट फेसबुक और यूट्यूब या मेटा डाटा की जो हम बात कर रहे हैं,
सो मेटावर्स जैसी कंपनियां, उनको इसकी ताकत अभी पता है कि इंफॉर्मेशन और दिस डाटा जो है उसकी कीमत क्या होती है, ये उन लोगों को अभी पता है. So what we preserve in archives represents a complex array of social values. As this Elvis Kaplan argues in an essay on archives and the construction of identity, we are what we collect what we are. But by preserving some records and not others, archives affect society's collective understanding of its past, including what will be forgotten. अब इस बात को भी समझना है कि समाज जो सोचता है, जो वो याद रखता है, इससे और ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण बात है कि वो जो भूल जाता है. भूलता क्या है? आई एम ए हिस्ट्री स्टूडेंट, जस्ट आई वांट टू से दैट कई सारे वॉर हुए हैं, युद्ध हुए हैं, कई बार हेट की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो है हमें कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है. बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसकी वजह से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है. बट उसी गलतियों को हम फिर दोहराते हैं. सो वी नीड टू अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स और सच मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड वी नीड अ डायलॉग, कंटिन्यूअस डायलॉग. सो ये बात हमको यहाँ समझना है. Archives provide the record of an arrangement made at a certain time by one or more persons about individual actions, events, and stories. Archives do not testify to the accuracy or truth of these accounts, but rather to the accuracy of how and when the account was created. Collectively, these records of the past provide a corrective for human memory, a surrogate that remains unchanged while memory constantly shifts and refocuses in vision of the past. अब हमको किस बात पर फोकस करना है ये आप तय कर सकते हैं. What society wants, what you want. Society means we, हम लोग ही सोसाइटी है. सो हम किस बात पर फोकस करना चाहते हैं? हमारे हिस्ट्री से, हमारे पास्ट से हम किन चीजों को याद रखना चाहते हैं, किन चीजों को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं, इनकलकेट करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है. अगर आप एंशिएंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक अगर सोसाइटी को देखेंगे, तब पता चलेगा कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने दुनिया को अपना फोकस चेंज करने पर मजबूर किया है. सो हमें अपना ब्रेन जो है, हमारा जो सोचने का जो तरीका है, वो गिरवी नहीं रखना है. वो किसी दूसरे पर हमको ये नहीं करना है, निर्भर नहीं करना है. हमें सेल्फ हमारा खुद का तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है. तो हमें ये सोचना है हम किस विचार को लेकर के पास्ट में से क्या बेस्ट है कि जिसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं फॉर अ बेटर सोसाइटी. दिस इज व्हाट रीफोकसेस इट्स विजन ऑफ द पास्ट. Although the documents and images in archival records do not visibly change, however, the postmodernists remind us that our understanding and interpretation of them do constantly shift and refocus. So here this is the word interpretation of them. हम पुराने चित्रों को या उसके कॉन्टेक्स्ट को, सॉरी उसका जो कंटेंट है, टेक्स्ट जो है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, मगर जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकते हैं. सिंपल अगर बात अगर ले तो मैं ये कहता हूं कि पिछले सैकड़ों साल में कितनी मूर्तियां तोड़ी गई, तो उसको मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, मगर जब से हमें अपना दिमाग है, देश आजाद हुआ है, 75 साल में हम उन मूर्तियों को क्यों निर्माण नहीं कर पाए, उसको रिस्टोर क्यों नहीं निर्माण कर पाए, इसके बारे में कभी सोचा है? हमारे जो भी हम जिसको कहते हैं ना कि डिजिटल रिस्टोरेशन अब आ चुका है, या हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्काइव मटेरियल है, या हमारे जो भी हेरिटेज साइट्स है, उसको हम बेस्ट क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में कभी सोचे हैं? कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हमें जो करना है, हम सिर्फ दूसरों ने क्या गलत किया इसको फोकस करेंगे, या हमने क्या बेस्ट क्रिएशन किया उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. अगर आप सिर्फ निगेटिव माइंड से सोचेंगे तो क्या होगा कि हम जहां है वहां रहेंगे, या तो हम जो है पीछे चले जाएंगे. सो अगर आप सच में डेवलपमेंट चाहते हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स की बात कीजिए. सो इंटरप्रिटेशन आप चेंज कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि एक ग्लास
अगर आधा खाली है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव मोड में कि आधा भरा हुआ तो है, सो लाइक दैट। तो और उसको आगे भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना है। आप ये जो देख रहे हैं क्या इसको हम आर्काइव्स कहेंगे? नो। आपको तो पता है कि ये हम कहीं चले जाते हैं कि तो रद्दी की दुकान में भी तो इससे ठीक ठाक किताबें रखी होती है, मगर मुझे क्षमा करना, ये ऐसे फोटोग्राफ्स हमारे लाइब्रेरीज में देखने को मिलते हैं। वेरी सॉरी, थोड़ा कंडीशन देखिएगा किताबों का और इसका, तभी आपको पता चलेगा। और उसमें से उसके ऊपर जो स्टिकर या छोटा सा ये दिखाई देता है उससे भी पता चलेगा। सो दिस वी कैन कॉल एज अ आर्काइव, ओके। बट दिस इज व्हाट archive or the next archive museum or a simple museum like that. So यहाँ पर जो है आपको archival material का, archaeological material का and information and some other things which used over here, and it's a museum. So for archive, records are reliable sources of information that control the security and transparency of administrative operations, playing an essential role in the development of a society. But before of that, just see this first line: records are reliable sources. But which records? किसने वो रिकॉर्ड निर्माण किया है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? दिस गोज टुवर्ड द आर्काइविस्ट। जो आर्काइविस्ट है, जो रिकॉर्ड कीपर है, जो रिकॉर्ड मैनेजर है, उसको ये तय करना होगा कि ये सच में हमने जो रखा है वो रिलायबल है या नहीं है। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। ऑथेंटिसिटी से ज्यादा मुझे जो है उसका रिलायबिलिटी ज्यादा आवश्यक है। सो देन यू कैन टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। So it's essential role that archival materials essential role in the development of a society. तो यहाँ जब हम बात करते हैं an archaeologist is a scientist that studies the cultural remains of an archaeological site. तो जो भी archaeological material होता है उसके बारे में। An archivist is a person who works with all kinds of documents that includes maps, books, photographs, recordings, whatever be there. So the records. So दोनों की मदद से जो है both are in the work of preserving culture. The difference is in the medium and process only. So archaeologists execute objects and send them to repositories or the museum. The first process of many antiquities, and archivists are commonly known to organize and preserve documents, but that can vary from institution to institution. अब यहाँ पर हम तीनों बातों को जो है देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आर्काइवल मटेरियल दिखाते समय में एक दिखाया था। सो विच टाइप ऑफ आर्काइवल मटेरियल नाउ वी नीड, किसके बारे में हम सोचना चाहिए, फोकस है ना। सो यहाँ आप जो देख रहे हैं एक मटेरियल है चित्रदीप प्रारंभ, फर्स्ट लाइन, यथा चित्रपटे दृष्ट। फिल्म बनाने वाला जो है हमारे यहाँ पर फाल्के जी का नाम लिया जाता है महाराष्ट्र में, जिन्होंने फिल्म सृष्टि की, फिल्म जगत की शुरुआत की, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्म बनाई, तो दादा साहब फाल्के। सो क्या पढ़ के उन्होंने बनाया था, क्या मटेरियल यूज किया था, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स या अदर सिस्टम से रिलेटेड हमारे लिए आज यूजफुल क्या है, उस आर्काइव्स को हम देखेंगे। ओके, सो फॉर टू प्रेजेंट सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है सिर्फ हमने कितने घंटे काम किया वो सोचने के लिए आर्काइव्स है क्या? नहीं है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबसे बेसिक नीड्स जो है किसी भी प्राणी की। सो मैं हमेशा मेरे सेशंस में ये बात करता हूँ और पूछता हूँ which are the three basic needs of a human, तो लोग तुरंत जवाब देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मगर बेसिक नीड्स जो है हमारी वो है हवा, पानी और अन्न, अनाज जिसको हम कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट नीड। अब आप जब देखते हैं हमारे आर्काइव्स का मटेरियल, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्टैटिस्टिया नाम से जो ऑनलाइन में जो काम कर रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छा आर्काइवल वर्क कर रही है। सो दिस फर्म, दिस कंपनी जो है, अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो डाटा है कि इंडिया हैज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ऑन अर्थ, और यहाँ दिल्ली जैसे शहरों को आप देखते हैं, गाजियाबाद को देखते हैं, वाराणसी को देखते हैं, पूना जैसे शहर है, बॉम्बे जैसे शहर है। सो दिन ब दिन ये जो पोल्यूशन है ये बढ़ता जा रहा हमको दिखाई देता है, और कोरोना की वजह से जितने लोग मरे उतने तो हर साल हमारे यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। मगर क्या हम लोग सीरियस है पोल्यूशन कम करने के लिए? आर्काइवल डाटा है हमारे पास, वी हैव अ डाटा of last 10 years, last 20 years, 30 years, 40 years, but
आर वी रियली सीरियस फॉर टू थिंक अबाउट दिस? क्या हम सच में सीरियस है कि हमको इसको पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं? सो अगर होता, sorry for to say, it's not the personal, but on this policy level also, on government level, on political level, जो भी है, तो अगर हम सच में सीरियस होते तो हम लोग जो है पब्लिक व्हीकल को यूज करते, ज्यादा से ज्यादा जो है हम पैदल चलने पर या जिससे पोल्यूशन ना हो जाए ऐसे बाइसिकल जैसे जो व्हीकल्स है उनको यूज करने पर हम ज्यादा जो है वो उसको ज्यादा प्रमोट करते। बट आज भी मुझे लगता है कि मेरे पास अपना व्हीकल होना चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, बाइसिकल होना चाहिए, कार होना चाहिए। मगर इसको हम जब सोचते हैं कि क्या मैं भी इस पोल्यूशन को बढ़ाने का एक हिस्सा हूं, तो जब मैं ये खुद से शुरुआत करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा उसमें एक अहम रोल बन जाएगा। आर्काइविस्ट जो है जिसके पास ये डाटा अवेलेबल है वो दुनिया के सामने रखने का कार्य करता है। यहाँ आप देखते हैं नंबर ऑफ द डेथ, ओके, एयर पोल्यूशन की वजह से 2010 से 2017 के बीच में जो डेथ हो चुके हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं 12.41 लाख, तो 2017 का ये डाटा है। और कोरोना के इसमें हमने देखा कि हम लोग यानी पूरे मनुष्य जाति मिलकर जो कार्य नहीं कर सकी, कोरोना ने सिर्फ 2019-20 में करके दिखाया। यानी हम लोगों को समझ है, हमारे पास डाटा है, मगर हमारा एक्शन उस तरह से नहीं हो रहा है। सो द आर्काइविस्ट हैव दैट पावर कि जो लोगों को उस दिशा में ले जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वो सक्सेसफुल हो सकता है, बट लोगों को उसके लिए सोचने पर वो मजबूर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट एक कोरोना जैसा, एक कोविड जैसा जो विषाणु है वो कोरोना को पोल्यूशन को कम कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सका। सो एयर क्वालिटी इन जस्ट 3 months को यहाँ आप देखते हैं तो उससे भी आप समझ में आ सकता है, ये 2019 का डाटा है। तो यहाँ आप जब देखते हैं कि इतना अच्छे से वो कर पाए, वाटरलेस की हम बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जस्ट 10 कंट्रीज का अकाउंट यहाँ दिए है। तो इंडिया यहाँ आप देखते हैं, सो जहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो पानी के लिए जूझ रही है, उस समस्या से ग्रस्त है। यहाँ जो है बारिश की मात्रा जो कम ज्यादा हो रही है उसका ये दिया है। स्टेट ऑफ रिवर पोल्यूशन के बारे में दिखाया है। सो रिवर पोल्यूशन की भारत में अगर हम बात करें, आप खुद अपने आजू बाजू में जाकर देखें कि आपके यहाँ के जो तालाब है, आपके यहाँ की जो नदियां हैं, वो क्या सच में शुद्ध है? ऐसी कोई एक रिवर मुझे दिखाइए, कोई भी एक रिवर मुझे दिखाइए कि जो जो पूरी तरह से आप कहेंगे कि शुद्ध है। नो वन, नॉट अ सिंगल रिवर इन इंडिया। जहां लोग रहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, घने जंगलों में या फिर जो गंगा जो हमारी ऋषिकेश तक, लक्ष्मण झूला तक जो आती है, वहां तक वो क्लीन है। मगर उसके बाद क्या, ऋषिकेश में, हरिद्वार में आगे बढ़ती है तो उसका क्या? तो इस तरह से जो रिवर्स, यानी इंसान नदियों को अच्छा रखने के लिए है या उसको पोल्यूशन करने के लिए है? जंगलों में और पहाड़ों में नदियां तो शुद्ध दिखाई देती है, मगर जैसे आबादी में आ गई तो हमने तो शुरुआत कर दी गंदगी की। सो ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं है, ये एंटायर सोसाइटी के लिए है। Then we have such type of the records, the data in our archives regarding this all. So हमने नर्मदा वैली कल्चर या इंडियन रिवर्स वैली कल्चर के बारे में जब हमने कोर्सेज किए तो इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए, बट वी नीड द अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू स्टार्ट इट, अदरवाइज व्हाट विल हैपन। आप ये सारी जो देख रहे हैं पानी की समस्याएं, चाहे बारिश का हो, चाहे ग्राउंड वाटर जो उसका जो यूज जो बढ़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ कहते हैं जब आपको कुएं से मैन्युअली अगर आपको हार्डवर्क करके जब पानी निकालना होगा तो आपको पता चलेगा कि पानी की कीमत क्या है। मगर जहां एक बटन दबाते ही हमें चाहिए जितना पानी मिल रहा है, वो चाहे वेस्ट हो रहा है, तब भी हम उसको सोचने के लिए तैयार नहीं है। सो तब तक जो है हमारा कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है कम नहीं होगा, जब तक हमें एक बूंद पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, तब तक हमें जो है इसकी कीमत पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1972 वर्सेस 2012, पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर, यानी अब तो 60 कहेंगे, उस समय का 50 सालों का। तो उसमें आप यहाँ पर ये देखते हैं, तो ये 50 साल का डाटा कहाँ पर अवेलेबल है? हमारे जो
हमारा जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा महाराष्ट्र का जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, उसके जो डायरेक्टर थे IAS ऑफिसर कौस्तुभ देवगांवकर जी जैसे लोग, जिन्होंने बहुत सीरियसली इसके बारे में वर्क किया। सो हम लोग इस तरह से हमारे तालुका लेवल पर, सिटी लेवल है तो टाउन म्युनिसिपल में भी कर सकते हैं। आप लोग अगर सच में काम करना चाहते हैं, सीरियसली इस दिशा में काम करना चाहते हैं, तो किसी भी एक इश्यू को लेकर के, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वाटर हो, चाहे अनाज के बारे में हो, काम कर सकते हैं। सो इसके लिए किसी डिपार्टमेंट को चयन कीजिए, उसका रिकॉर्ड जो है उनके पास अवेलेबल है। सो आप ही एक आर्काइविस्ट बन जाइए, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा शायद उसको उसका सीरियसनेस नहीं पता होगा। आप उसका फोटोकॉपी लीजिए और उसको पब्लिश कीजिए आर्टिकल्स के द्वारा, रिसर्च पेपर्स के द्वारा, या आपके जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, बताइए बार बार आपके शहर के लोगों को, गांव के लोगों को, कैसे अपने शहर का ग्राउंड वाटर लेवल कम होते जा रहा है, या हमारा जो बारिश है वो कैसे कम हो रही है, तो क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, हमारा जो उसके बारे में सॉल्यूशंस है वो इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आवश्यक है। तो इजीएस्ट वेज मेथड्स जो है, समटाइम्स इट विल बी क्रूशियल, अगर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है सो इट विल बी क्रूशियल, तो उसके बारे में आप बात कीजिए। यू स्टार्ट फ्रॉम योर विलेज, योर टाउन, देन योर पंचायत और तालुका, देन अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड देन अप टू द स्टेट। अगर एक बड़ा आपका इस तरह का एक ग्रुप बन जाए तो आप बड़े पैमाने पर काम कर सकेंगे। मगर हमें शुरुआत करनी होगी हमारे खुद के गांव से, हमारे खुद के शहर से। आर्काइव्स का हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट आवर आर्काइव्स, आवर यूज ऑफ आर्काइव्स फॉर द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द हंगर, जिसको हम अन्न कहते हैं, अनाज कहते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए कि कैसे हम लोग जो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जिसको इंटरनेशनल लेवल की हम बात करते हैं, तो 2020 में 135 मिलियन पीपल at the beginning of 2020, but by the end of 2020 265 million, and now in 2022 it's raised, now it is the 330 up to this, क्योंकि लास्ट आंकड़ा अगर आप देखेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम CSIS वाला, तो आपको ये पता चलेगा। सो यहाँ पर खाने के लिए जिन लोगों को जूझना पड़ रहा है, जो बच्चे आज भी भूख से तड़प कर मर रहे हैं, तो उनके लिए जब हम काम करना चाहते हैं, तब हमको ये देखना है, ऐसी कई सारी एनजीओज है जो इसमें काम कर रही है, तो थोड़ा उनका भी हिस्ट्री सर्च कीजिए कि सच में वो वर्क कर रहे हैं या सिर्फ ऑन पेपर चल रहा है। सॉरी फॉर टू से दैट, बट 99% एनजीओज इन आवर कंट्री और इन इंटरनेशनल लेवल आल्सो इन डिफरेंट कंट्रीज, सो ये सारे जो है सिर्फ ऑन पेपर वर्क कर रहे हैं। अगर ये सीरियसली वर्क करते, मिलियंस ऑफ एनजीओज आर देयर नाउअडेज देयर, तो अगर वो सही में सही दिशा में काम करते तो ये सारे प्रॉब्लम कब के सॉल्व हो चुके होते, बट ये नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये हम्बली मैं आपको कहना चाहता हूँ, with the using of our these archival sources, with the using of our archaeological sources, we can start this work. Okay, now यहाँ पर जो है कोविड-19 में लोग मरे। अब हम थोड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। हमने शुरुआत की थी हवा, पानी और अनाज से। फोर्थ पॉइंट इज दैट द डिसीजेस की हम बात करते हैं, हमारी हेल्थ की बात करते हैं। कोविड-19 में जितने लोग मरे, उससे कई ज्यादा लोग पिछले कई सालों में, कई दशकों में, कई शतकों में मरे हैं वायरल डिसीजेस की वजह से। ये फोटोग्राफ आप जो देख रहे हैं, ये उसकी भयावहता स्पष्ट कर देता है। ये फोटोग्राफ है 1918 का, जब स्पेनिश फ्लू आया था। और यहाँ पर एक आप एक ये देख रहे हैं, इन रिमेम्बरेंस ऑफ द चिल्ड्रन buried in this area who died in flu epidemic of 1980, names are known only to God. So ये भयावहता 100 साल पहले हमें दिखाई दी। So यहाँ देखते हैं 1918 में अराउंड 500 मिलियन पीपल जो उस समय थे, उसमें से 50 मिलियन पीपल का लगभग स्पेनिश फ्लू की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, एंड अराउंड 5 मिलियन पीपल डाइड ओवर देयर। तो यहाँ देखते हैं कि 100 इयर्स पहले ही मास्क पहनकर काम करने की शुरुआत हो चुकी थी, मास्क बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। ये फोटोग्राफ जो है नेशनल आर्काइव से लिया गया है 1918 का। और आज भी हमको गवर्नमेंट को
बार बार लोगों को कहना पड़ता है कि प्लीज मास्क को पहनिए, थोड़ा सा सीरियस रहिए, ये इसके लिए फिर पुलिस को जो है लाठी उठानी पड़ती है। सो व्हाई, आपकी ही जान बचाने के लिए या हमारी जान बचाने के लिए क्यों हमारे खिलाफ ही गवर्नमेंट को सख्ती से पेश आना पड़ता है? लोग उसके खिलाफ कितना आंदोलन करते हैं। पॉलिटिकल इश्यू जो है ना इतना खराब है, बैड पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन ले लिया, हम उसको विरोध करेंगे, मगर हम ये नहीं देखेंगे कि सच में उसकी वजह से जो है किसी की जान बच सकती है। सो अगर सही में अगर कोई गलत है तो उसको विरोध कीजिए, बट ओनली फॉर द कॉज ऑफ अपोजिशन, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये 100 इयर्स पहले के फोटोग्राफ हम देख रहे हैं। सो व्हाई कोविड-19 इज नथिंग लाइक द डेडली स्पेनिश फ्लू। उस समय हमारे पास जो है इतने संसाधन नहीं थे, इतनी तेजी से लोगों तक हम किसी मैसेज को पहुंचाए, अगर आज हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया, ये सारी बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया है, और हम लोगों को मैसेज जल्दी पहुंचा सकते हैं, किसी भी बात के सीरियसनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बट आर वी रियली सीरियस टू स्प्रेड दिस मैसेज इन द वे व्हाट द नीडफुल इज देयर? जो आवश्यक है उस तरह से हम उनको पहुंचाते हैं क्या? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम कभी बात करते हैं क्या? ये बात अहमियत रखती है। यहाँ आपको अगर इतिहास ही देखना होगा तो ब्लैक डेथ जैसी बीमारी है, हमारे पास प्लेग जैसी बीमारी, हम प्लेग कहते हैं उसको। सो ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से लाखों लोग मरे हुए हम देखते हैं, और इसके ये सारे फोटोग्राफ देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसमें अभी तक मारे जा चुके हैं। अभी कुछ साल पहले की बात करते हैं, 2009 to 2010 में स्वाइन फ्लू जैसी जो बीमारी है उसकी वजह से लगभग 5,75,400 लोग मारे जा चुके थे। इट मीन्स जस्ट बिफोर 10 years बैक। बट टिल देन इससे भी हम कुछ नहीं सीखे, क्योंकि सालों से, शतकों से इतिहास है, लास्ट डिकेड में भी वही हिस्ट्री हमें पता है, फिर भी हम लोग उसके बारे में सीरियसनेस नहीं है। अब बात करते हैं कि ये बीमारियों के, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो बार बार हो रही है, सो उसके बाद नंबर आता है लड़ाइयों का, वॉर्स, बैटल्स, जिसमें कई सारे लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, और हजारों सालों का ये इतिहास हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो फाइंड आउट किया है। फिर भी हम लोग जो है इसके बारे में सीरियस नहीं है। जब ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, जब बारिश की मात्रा कम हो जाएगी, तब जो है वायरल डिसीजेस आने हैं। इसको क्या हम लोग नहीं समझते हैं? जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तब आपको जो है तुरंत कई सारे प्रॉब्लम्स, ये वायरल डिसीजेस, हमारी इम्यूनिटी पावर ऐसे ही कम हो जाएगी तो हमारे ऊपर ये अटैक हो जाएगा, ये हमको पता है। फिर भी हम लोग जो है उसके बारे में, मैं जो अभी कह रहा हूँ, वाटर्स और फूड और इसके बारे में या पोल्यूशन के बारे में सीरियसली सोचने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने बार बार आते हैं। सी दिस वेरी जिसको हम कहते हैं ना डरावने पिक्चर्स, हमारे हॉरिबल पिक्चर्स है। तो डेथ्स, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट मेनी इंसिडेंट्स लाइक दिस, बट व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस ऑल? So museums can convert this as our study part by visualizing it for visitors and new generations with the help of archivists and archaeologists. Archaeologist क्या करेगा? जो एक्सकैवेशन है वो करेगा, मगर आर्काइविस्ट क्या करेगा? उसके पास जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जो आर्काइवल मटेरियल अवेलेबल है, उससे और ज्यादा डिटेल रूप में उसकी जानकारी देगा। और हमारे पास जो म्यूजियम्स है उसमें एक अच्छे से, आप उसको हम कहते हैं कि एक इम्पैक्ट जिससे बने, ऐसी एक स्टोरी ऑथेंटिक जिसको है, रिलायबल जो है, वो मैटर आप वहां पर जो है कंटेंट जो है डिजाइन कीजिए जिसका इम्पैक्ट हो सके। और आप जो है म्यूजियम्स में, बट अगेन द म्यूजियम, मेरे एज पर माय डेफिनेशन, द म्यूजियम्स मीन्स नॉट ओनली द शो, जिसको हम कहते हैं ना कि कहीं पर कुछ एंटिक्विटीज लगाए हुए हैं वगैरह, इट्स नॉट museum for me, but the museums means all the places where the peoples visit and यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले किया हुआ है और जिसको इंटरेस्टिंगली लोग देखने के लिए जाते हैं, the malls and the shops also. So यहाँ पर भी आप जो है इसके बारे में जब आवश्यकता रहे, when there is need, तो ऐसे समय में इसके बारे में कुछ
बैनर्स, कुछ पोस्टर्स, कुछ जो डिस्प्ले यूनिट्स जो भी होते हैं वो वहां पर आप लगा सकते हैं, जिससे लोगों को इसका सीरियसनेस पता चले। अब आते हैं हम कल्चर की तरफ में। सो व्हाट इज द कल्चर? द वैल्यूज, द बिलीव्स, द बिहेवियर, प्रैक्टिसेस एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इससे शुरुआत करते हैं, बाकी बातों को छोड़ दें, कल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह। यहाँ आप देखते हैं ये सारा जो माइंड मैप जिसको हम कहते हैं। सो हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा कस्टम्स है, हॉबीज है, लैंग्वेज है, मेडिकल क्योर है, रिलीजन है, इन सारी बातों को लेकर के ही तो हमारा कल्चर बनता है। अब इसमें सिर्फ हम मेडिकल क्योर की बात करते हैं, हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है, जो आयुर्वेदा, योग शास्त्र, सिद्धा, यूनानी, इसकी बात जो करता है, तो इसमें वो नेचर की बात करता है, नेचुरोपैथी की बात करता है, नेचर क्योर की बात करता है। बट आर वी रियली सीरियसली थिंक अबाउट द नेचर? कुदरत के बारे में हम लोग सोचने के लिए तैयार है क्या? कुछ डायमंड मिल रहे हैं इसलिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, मगर इंसान ही नहीं जिंदा रहेगा तब डायमंड को और गोल्ड को लेकर क्या करेंगे? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमंडलम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। क्षमा करना, ये कोई स्पीच नहीं है, भाषण नहीं है, मगर ये एक लेक्चर में भी मुझे कहना बड़ा आवश्यक पड़ता है कि जब आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा, जब शुद्ध हवा नहीं होगी, पीने के पानी के लिए तड़पना पड़ेगा, तब लाखों किलो सोना और लाखों डायमंड्स भी आपके पास होंगे, तो क्या उसका कुछ यूज होगा? सो ये हमारा कल्चर जो है ना, आयुर्वेद के बारे में बात करता है। आयुर्वेद जो है वो वृक्ष और हमारी नेचर के बारे में जो है वो बात करता है। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट को देखते हैं हमारे कल्चर में, टाइम, एक्शन, कम्युनिकेशन, स्पेस, पावर, और इसमें जो है मैं सिर्फ आता हूँ कल्चर में एक छोटा सा पार्ट, आर्ट, ड्रामा एंड म्यूजिक, बिकॉज इट विल बी सो इम्पैक्टफुल। कल्चर की जब हम बात करते हैं, ये बात मेरे लिए, बाकी सारी बातें भी उतनी आवश्यक है। फूड कल्चर की बात करते हैं, हमारे प्लेट में एक निवाला भी जो है वो वेस्ट ना हो जाए, ये तो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है ना। आगम ग्रंथ हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे हमारे वेद उपनिषद हो, चाहे और भी कोई, तो इसमें तो ये सिखाया जाता है कि हमारा अन्न जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है कि हर किसी को भूख से जो है वो तड़पना पड़ा है। तो कान्हा ने भी माखन चोरी किया था, क्योंकि गोपियां जो है वो भूखे बच्चों को छोड़ करके जो है मथुरा के बाहर जाकर के वो अपना नवनीत जो है, लोनी जो है वो बेचती थी, इसलिए कान्हा को जो है माखन चोरी करना पड़ा था। हमें पता है मोहम्मद पैगंबर हो, जीसस हो, इनको भी जो है पानी के लिए और अन्न के लिए जो है, फॉर द फूड एंड फॉर द वाटर, उनको भी संघर्ष करना पड़ा था। ये सारी बातें हम फूड कल्चर और इसमें देखते हैं। मैं आता हूँ आर्ट, ड्रामा और म्यूजिक की तरफ। आर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो यहाँ जो दिखाई देती है, अरिस्टोटल कहता है द एम ऑफ आर्ट इज टू रिप्रेजेंट नॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ थिंग्स बट देयर इनवर्ड सिग्निफिकेंस। सो इनवर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, इसको कभी समझे है? क्रिएटिविटी इज अलाउइंग योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स बट आर्ट इज नोइंग व्हिच वंस टू कीप। गलतियां तो हो जाती है, मगर रखना क्या है उसमें से, ये सोचना आवश्यक है। स्कॉट एडम्स ये कहता है, आई फाउंड आई कुड से थिंग with the color and shapes that I couldn't say any other way, things I had no words for. जॉर्ज एक्वेट। सो यहाँ कई सारी ऐसी डेफिनेशन दी है। लास्ट में देखें, the essence of all beautiful art, all great art is gratitude। अब यहाँ पर आर्ट की डेफिनेशन एंसेंट से लेकर मॉडर्न तक के इसमें जब देखते हैं, तो चाहे इस तरह के डिजाइन बनाना हो, चाहे और कुछ हो, बट हियर ऑन द लेफ्ट साइड यू जस्ट सी art is about more than pretty pictures. The visual arts will teach your kid to think outside the box, to be a problem solver. Problem solver बनना है। कल्चर का एक छोटा सा पार्ट है आर्ट, और उसमें ये बात है to be a problem solver। मैं म्यूजियम्स के बारे में, आर्काइव्स के बारे में ये बात कह सकता हूँ, we need to become a problem solver and how we'll become, यही उसका जो है वो सेशन अभी चल रहा है। Okay, so then here just I want to say, एक छोटा सा एक शिल्प आपके सामने दिखाई देता है, कुदरत की बनाई हुई एक मूर्ति, मैं खुद, और यहाँ पर इंसान ने बनाई हुई एक मूर्ति आर्टिफिशियल। दोनों में उतनी सुंदरता है, मगर ये सुंदरता तब निर्माण हो पाई है जब इंसान ने अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर दिया है, डेडिकेशन है।
जो वर्क उसने किया है उसके लिए उसको सदियों तक, सालों तक जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ी है। सो यहाँ पर जब हम ऐसी मूर्ति किसी बच्चे को दिखाते हैं, ये सारी मूर्तियां जो भी सुंदरता आपके सामने दिखाई दे रही है, दिस ऑल ब्यूटीफुल वर्क्स, तो ये हमारे बच्चों में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी हेरिटेज साइट पर जाते हैं तो उन बच्चों को ये कहिए कि बेटा क्या तुम इस तरह से कुछ बना सकते हो, मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बनाना मुश्किल होगा, ठीक है उसको बोलिए एक सिंपल सा स्केच बना सकते हो। अगर वो बच्चा शुरुआत अगर कर दे एक बार, उसने एक पेन और नोटबुक लेकर के अगर या कोई अगर व्हाइट पेपर लेकर के अगर उसके ऊपर ये स्केच बनाना अगर एक बार शुरू कर दिया, तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा आप उस बच्चे को कहोगे कि नाउ लेट अस फॉरगेट इट, चलो यहाँ से, वो वहां से नहीं उठेगा, क्योंकि वो उसको उसमें उतना इंटरेस्ट निर्माण हो जाएगा। सो वी नीड टू प्रमोट, वी नीड टू इंस्पायर देम फॉर दिस आर्ट, फॉर दिस आर्किटेक्चर, द ब्यूटीफुल क्रिएशंस। सो जब मैं उसके लिए मैं एक बात कहता हूं कि जिस समय अच्छा निर्माण करने की ओर एक बार बच्चे मुड़ जाए तो बुराई की तरफ अपने आप उसकी पीठ हो जाएगी। When once he will engage in the constructive work, in the best creations, then automatically he avoid all these bad things, जिसको हम कहते हैं ना कि बुरी चीजें, बुरी आदतें, सो इन सब से जो है वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं है भाई कुछ गलत करने के लिए, कुछ बुरा सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि क्रिएशन बेस्ट क्रिएट करना है ना, तो समय कहाँ बच जाता है। ये सारी जो मूर्तियां आपके सामने, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे चित्र आपके सामने आएंगे। सो फॉर मी, मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा ये बनाया है, आर्ट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ हार्ट, हमारे दिल की सुंदरता है कला, एंड द आर्किटेक्चर इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटीज हार्ट। सो समाज की सुंदरता, और यू कैन से द ब्यूटी ऑफ सोसाइटीज हार्ट, क्योंकि जब समाज शांत रहता है, जब समाज कलाकारों को प्रमोट करता है, इंस्पायरेट करता है, उनको सपोर्ट करता है, तभी जाकर के एक सुंदर और विशाल स्थापत्य निर्माण हो सकता है। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वॉर चल रहा है, कलाकारों को जो है कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। इस तरह से एक सुंदर आर्किटेक्चर निर्माण हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो यू कैन सी सच टाइप ऑफ द thousands or the millions of such examples all over in the India. So by understanding the heritage, people value it. So समझने का प्रयास कीजिए। मैंने जो 2-4 स्लाइड्स आपको दिखाया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द ब्यूटी ऑफ हर्ट एंड द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी और द सोसाइटीज हर्ट। सो इसको समझने का प्रयास कीजिए। वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल वैल्यू इट। बाय वैल्यूइंग द हेरिटेज, पीपल वांट टू केयर फॉर इट, एंड बाय केयरिंग the heritage will help people to enjoy it. दुनिया जो है ना वो सारी इस एंजॉय में है, खुशी में है, मगर समझ कर जो है ना वो खुशी होनी चाहिए। ना समझ की जो खुशी होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं, जब हम गार्डन्स में जाते हैं, हम लोग कहीं भी वाटर बॉटल्स को फेंक देते हैं, कहीं अजंता एलोरा जैसे साइट्स पर जाते हैं, वहां जो वाटर टैंक्स होते हैं उसमें हमारे वाटर बॉटल्स हम फेंक देते हैं, हिमालय में जाते हैं प्लास्टिक बॉटल्स फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। इट इज नॉट एंजॉइंग। बाय केयरिंग यू कैन रियली एंजॉय इट। ओके, सो एंड देन फ्रॉम एंजॉइंग you come a thirst to understand it. So this is what a heritage cycle, and this art and architecture and the culture is what a part. So heritage is what a part of our culture. So millions of people visit the museums. Now we start for the museums. So not the archives or archaeology department. So millions of people, actually हजारों लाखों लोग जो है, फुटफॉल अगर आप देखेंगे, जो बेस्ट 10 म्यूजियम्स को आप गूगल में सर्च करेंगे, सो इट्स अ नंबर इन मिलियंस। जैसे भारत का भी अगर हम सालार जंग म्यूजियम की बात करते हैं, नेशनल म्यूजियम दिल्ली की बात करते हैं, या फिर इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की बात करते हैं, सो मिलियंस ऑफ पीपल विजिट द म्यूजियम्स, बट दे आर नॉट रेडी टू इन सच क्वांटिटी, इतना फिगर, जितना नंबर जो है वो आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को लोग नहीं विजिट करते। सो बट दे आर बॉन्डेड विद द कल्चर, फॉलो द कल्चर। सो यूज दिस ऑल, अभी तक जो देखे ना, सो यूज दिस ऑल इन आवर म्यूजियम्स टू कनेक्ट द पीपल्स, community, society,
and then we move towards up to the universe. So community की बात करते हैं. So हर व्यक्ति के पास उसकी एक अपनी कुशलता है. Everyone have his own skills and we need to recognize it. We need to identify it and use it in our museum. So the museums where the mass and class without any boundaries. Can you say यहाँ पर जो लोग जमा है उसमें से कौन किस जाति का है, कौन किस क्लास का है, कोई बता सकता है यहाँ पर कि ये किसी धर्म से रिलेटेड है या ये इस जाति से रिलेटेड है या ये कोई रिच आदमी है, ये पुअर आदमी है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नो. सो द म्यूजियम्स फॉर मी, दिस इज व्हाट द मास एंड क्लास विदाउट एनी बाउंड्रीज. So our role, our responsibility is what? Something special. We have a great power. We need to understand it. So the culture is something that unites people. संस्कृति वो होती है जो लोगों को जोड़ती है. लोगों को तोड़ने का काम संस्कृति नहीं करती है. इसलिए हम भारतीय संस्कृति के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में जब बात करते हैं तब हम कहते हैं कि वो विश्व में सबसे श्रेष्ठ है. क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीनता से वसुधैव कुटुंबकम की बात की है. बराबर है ना? मराठी की मैं बात करता हूं तब उसमें जो है हमारे ईशावास्य उपनिषद की जब बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वहां ऐसा नहीं बोला है भारतीय भवन्तु सुखिनः, ऐसा नहीं बोला है. ओके, सो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. So culture is something that unites people, and now the work in archives with the traditional and modern ways, ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं इसको ले जा करके हमको कहीं तो भी जो है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन में जोड़ना होगा. ये जो है ना सिर्फ हमारा रोल विजुअलाइजेशन और एग्जीबिशन तक नहीं रुकेगा. कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद द सोसाइटीज, विद द न्यू जनरेशंस, द पीपल्स विद द डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ओके, सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल है. यहाँ पर आप देखते हैं कि आज हमारे कुछ संग्रहालय इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, जनजातीय साहित्य महोत्सव, लोगों को प्रमोट करना है. यहाँ पर जो है न्यू जनरेशंस को प्रमोट करना है. कला के कोई बंधन नहीं है. 64 टाइप्स ऑफ द आर्ट्स आर देयर. सो दिस न्यू टर्म जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, सो बच्चों को, न्यू जनरेशन को इसमें आप इनवाइट कीजिए. सो रिदम, दिस इज आल्सो वन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल म्यूजियम डे. गॉडेसेस, गेम्स एंड म्यूजिक, कभी सोचे हम इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ प्रोग्राम हो सकता है? गॉडेसेस, गेम्स एंड म्यूजिक, व्हाट इज द इंटररिलेशन ऑफ दिस ऑल? ये रिदम क्या है? कभी इसको समझने का प्रयास कीजिए. म्यूजियम एज कल्चरल हब्स, द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन. ओके, सो इसके बारे में अगर गूगल करेंगे 18 मई 2009 ICOM थीम, तो आपको ये सारी डिटेल बातें वहां पता चलेगी. अनदर प्रोग्राम ऑन 2010 म्यूजियम्स फॉर सोशल हार्मनी. ओके, सो देन म्यूजियम्स and this contested histories saying the unspeakable in museums, ये 2017 का थीम था. यहाँ पर जो है ऐसे लोग जिनके पास अपनी कलाएं हैं, अपनी एक्सपर्टीज है, मगर वो लोग जो कहीं बात नहीं कर सके, जो हम अपने संग्रहालय में, संग्रहालय के द्वारा उनकी कहानी दुनिया के सामने रख रहे हैं. सो फर्स्ट स्लाइड को याद कीजिए, वहां कुछ लिखा था ऊपर में, और अब ये जो लाइन है उसको समझिए. is saying the unspeakable in museums. Okay, then here this is the 2020's theme, museums for equality, diversity and inclusion. So ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम हर साल ऐसी अलग अलग थीम देता है. हम लोग प्रयास करते हैं इस दिशा में काम करने का. आप भी, मुझे ऐसा लगता है, सीरियसली इसके बारे में सोचिए, और अगर आप सोचेंगे और उस दिशा में कार्य करने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा. डॉक्टर मुनमुन मंडल जी ने मुझे बताया था कि सेशन में आर्कियोलॉजी पार्ट में थोड़ा सा ये भी बताइए कि रिसेंट में कहां पर और किस तरह के एक्सकैवेशंस इंडिया में हो रहे हैं. वैसे तो आज की तारीख में अराउंड 32 डिफरेंट साइट्स पर बहुत बड़ा वर्क चल रहा है. उसमें से मैंने सिर्फ कुछ ही यहाँ पर चुने हैं. जैसे राखीगढ़ी है, तो जहाँ पर डॉक्टर भीम सिंह मलान, डॉक्टर वसंत शिंदे जी जैसे लोग काम कर रहे हैं. इट्स एन 550 एकड़ साइट. और हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें एक बहुत अहम रोल राखीगढ़ी साइट का भी है. उसके साथ साथ जो है अभी धोलावीरा, हम सबको पता है, लास्ट ईयर ओनली इट्स डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से वर्क अभी चल रहा है. उसके बाद लोकल जो है उसमें भी नया वर्क अभी चल रहा है, बिकॉज नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है
यहाँ पर अभी बनने जा रहा है, तो यहाँ पर भी उसका बात चल रहा है। डॉक्टर वसंत शिंदे जी ने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। इस तरह से जो है अलग अलग साइट्स पर ये काम हो रहा है। उसके बाद साउथ की जब हम बात करते हैं तो आदि चंडलूर जो साइट है, जहाँ पर अराउंड 905 बीसी से 696 बीसी तक का एक्सकैवेशन में जो ये आर्टिफैक्ट मिले हैं, एंड कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि मैच्योर फेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन 1500 बीसी तक की हम बात करते हैं। उसके बाद हम महाजनपद की शुरुआत करते हैं डायरेक्टली अराउंड 600 बीसी, 6th सेंचुरी बीसी। तो उसके बीच में क्या हुआ था उसको समझने के लिए हमारे पास ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है जो अभी वर्क चल रहा है, आदि चंडलूर। देन अगेन दिस शिवगलाई, another site in Tamil Nadu, around 10,000 years old this site. So this is also interesting site. So आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। एंड अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे यहाँ पर जैसे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मुक्ताई नगर तालुका में चांगदेव जैसे प्लेसेस है जहाँ वर्क हो रहा है, और ऐसे कई सारे साइट्स है। बट दीज आर सम इम्पोर्टेंट साइट्स। आसाम में और जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में इस तरह से और वर्क चल रहा है, मगर सारे साइट्स को हम यहाँ कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कुछ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाउअडेज इन इंडिया, जो 4-5 जो प्रमुख है उसको ही मैंने यहाँ पर लिया है। बट आई विल शेयर आर्टिकल विथ यू सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। अगेन last, this is another International Museum Day theme. So just I want to say here, museums in a changing world, new challenges and new inspirations. So what are the new challenges and what are the new inspirations we need? So please think about this seriously. So thanks a lot to all of you, and please think about these new challenges so that we can get an idea how we use our archives, our archaeological these artifacts or the materials and the museums and our cultural these practices and our behavior, whatever be there, the art and architecture. So how can we use it or to create or to see a better society? कुछ अच्छा देखना है तो उसके लिए हमें इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में हमें सीरियसली सोचना होगा। So thanks a lot. If there are any questions, most welcome. अगर कुछ सवाल है तो जरूर पूछें। हर बार ये होता है कि सेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद मैं कहता हूँ 7 o'clock, after 7 o'clock I asked. So I am facing, okay, Banerjee ji, okay, so if there are any questions then most welcome. मैंने जैसे कहा आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पर्टिकुलरली मैं कुछ आर्टिकल शेयर करूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा। और जैसे हम हमारे हर सेशन के बाद स्टडी मटेरियल भेजते हैं उसको भी हम शेयर, उसको भी पढ़िए। जो आप मुझे अभी जो सेशन के नोट्स शेयर कर रहे हैं, humble request to all of you that after reading the study material once again, फिर एक बार जो है उस नोट्स को आप और एक बार लिखिए, ताकि आपने अभी सेशन में जो समझा है उसको थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप उससे समझ सकेंगे आफ्टर रीडिंग द स्टडी मटेरियल। तो फिर उसको रिराइट कीजिए ताकि आप उसको फिर कभी नहीं भूलेंगे, वो आपके दिमाग में पक्का रह जाएगा। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस देन प्लीज वेलकम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। मैंने जो कहा शायद समझा होगा, वेरी सॉरी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। जो कहने का मैं प्रयास कर रहा था, हमने ट्रेडिशनली जिस हमारे संग्रहालयों को, हमारे आर्काइव्स को जो समझा है ना, उससे ज्यादा ताकत हमारे पास अवेलेबल है। We need to understand it. Yes, Rashmi madam, you want to say something? Rashmi Adekar. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, सिंधुलिपि है ना, वो पढ़ने में कहीं यश मिला है क्या? कोई पढ़ सका है? इंडस स्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो जेम्स प्रिंसेप एंड आफ्टरवर्ड्स फ्यू ऑफ द पीपल्स लाइक गौरीशंकर ओझा जी एंड देन हमारे यहाँ पर जो है एक ट्राइबल से एक एक्सपर्ट है, सॉरी आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने अपनी बुक भी मुझे गिफ्ट भेजी है। सो उनकी ही इज द अनदर पर्सन डीडी कोसाम्बी एंड फ्यू मोर, कि जो थोड़ा बहुत प्रयास करके सफल हो पाए हैं। हमारा एक सेशन है इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पर्टिकुलरली, मैंने उसमें वो सारा दिखा दिया है। सो इफ पॉसिबल प्लीज वॉच इट, आई विल शेयर द लिंक विथ यू and you can get the idea.
but I can say that we are still not 100% successful in reading of this. Okay. Thank you, sir. Most welcome. Yes, Rashmi Ayagiri ji. Yeah, sir. When we spoke about archaeological site, जो अभी recent site था Sanoli, we haven't means it had been in news for a very long time, because I generally follow a lot of archaeological page and sites. I read a lot. So is Yeah. the excavation still going on? Is the site is still active? Yes, still going on. अभी अभी न्यूज पब्लिश हुआ मेरे ख्याल से लास्ट ही इसमें जनवरी में कि उसका वर्क जो है वो शुरू कर रहे थे. They said beach mein when I had seen that they had stopped it temporarily, but because they are also claiming it is 3,000, 4,000 year old civilization. Yeah. Thank you. इसके बारे में जी थैंक यू. इसके बारे में आप अगर वहाँ का जो रीजनल सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजी जो होते हैं उनसे भी अगर कभी डायलॉग हो जाता है तो क्लियर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ओके सर. ओके. एनी मोर क्वेश्चंस? किसी ने अभी अनम्यूट किया था. इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? डायलॉग होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है, वन वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ सवाल आपके मन में नहीं है. यस डॉक्टर संतोष यादव जी कुछ पूछना है? Yes, sir. I want to know what are the major obstacles or barriers the learning from the archives and the museum. They are contributing a lot, as I suppose. We suppose, but what people are not learning a lot. What are the obstacles and the barriers actually? See, sir, actually in the contemporary time. आप जो बात कर रहे हैं, so the first thing is that हमारे दिमाग से पहले ये निकाल दें कि लोग पढ़ना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते. लोग पढ़ना चाहते हैं. The new generation, they are ready for to understand it. अगर उनको प्रॉपरली गाइडेंस मिले, इसके लिए आज भी हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़े किए गए हैं. सॉरी फॉर टू से दैट. You are belonging from which state? Can you please say? Santosh Yadav ji. Yes, sir. UP, sir. From UP. The Can you please say me that how many institutions are there in UP where we can study masters in museums degree? Only 3 institutions Hardly one. are there. Yeah. No, Yes. as I know, one is the degree and another 2 are there for diploma. Okay. So Diploma. university Yes. level की भी बात है और बाकी Yes, sir. इसमें Yes, sir. डिग्री भी अवेलेबल नहीं है. So in India only 6 states are there where we can get the degree of post graduation degree of this museum studies. So this is what the biggest obstacle. हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे यूनिवर्सिटीज को ये कोर्सेज शुरू करने चाहिए, सीरियसली उसको पढ़ाना चाहिए. लास्ट सेशन हमारा जो हुआ था यूजी लेवल और पीजी लेवल में ही अगर हम बच्चों से ये डायलॉग शुरू करेंगे, कोर्सेज शुरू करेंगे, वो सीरियसली काम करना अगर शुरू करेंगे, आफ्टर 5 years दिस लर्निंग द मास्टर्स द एक्सपर्ट्स विल बी देयर, जो हमें हमारे हेरिटेज को, एनी टाइप ऑफ द हेरिटेज, टैंजिबल और इनटैंजिबल, एक्सपर्ट्स हमारे पास रहेंगे जो इसको सेव कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे. वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट. हम कितने दिन गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है? जब तक हमारे एक्सपर्ट्स ही नहीं बनेंगे, उसका एजुकेशन ही नहीं मिलेगा, तब तक हम गवर्नमेंट को किस तरह से ब्लेम कर सकते हैं? So this is our responsibility of our all these education institutions, the private, the firm, the trust, the foundations. We need to start such type of the courses on graduation and post graduation level. मगर इतना broad perspective से शुरू करना होगा, ये बात भी याद रखिए. Yes, any more? Thank you, sir. Yeah, most welcome. Any other questions? There is no other question, sir, in the chat box. Okay, if there will be any, then you can send me on WhatsApp also. अगर कुछ भी सवाल है तो आप मुझे WhatsApp पर भी भेज सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं. So yes, will we stop now? I think there is no question, so we can conclude here. Thank you. Yes, okay. Thank you for this informative session once more, sir. Yes, thank you. Thanks a lot. And
humbly thankful to university also and participants also कि जो मैं कह रहा हूँ शायद आप उसको समझ रहे हैं. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है then please ask. So once again humbly thankful to all of you and now tomorrow we'll meet again. Thank you.